Hello and welcome to Arunachal Mirror. Today we are here with the APPSC aggrieved aspirants who have the issue on the 1:3 and more. So they have already briefed on 10th of September and then again on the 24th September. So let us know from them what is the present status of of their issues. So can anyone tell us what is the present issue? Where has the issue gone now? Okay, first of all, thank you Arunachal Mirror for giving us this platform to highlight the issues and brief you about the status that we have started. So right now, as of today, the current status is, with regret I have to tell you, like after having submitted 11 representations to the government, commission, the concerned student unions, we have not received any concrete response from their side. For say, the commission was supposed to give us the review meeting in writing, but then that has not come up. And also the government has not, after giving 3 representations to the CM and another 3 representations to the governor, they have not responded us. And yes, also on the other hand, we have come into media briefing time and again and have appealed to the concerned authorities time and again. But still, the concerned authorities and the learned people are not willing to voice against this. So as of now, we're still trying. So there's not a concrete progress in ground as of yet, but we're still persisting on this. आपने पहले वाले ब्रीफिंग में भी कहा था कि कमीशन वाले ने गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ये इशू को लेके बात करने के लिए उन्होंने एक बताया है. तो जैसे बामंग फेलिक्स जो है उनको हम लोगों ने पूछा था कि एपीसीए से कुछ आप लोगों को कुछ इश्यूज़ का या फिर कुछ ऐसा लेटर या रिप्रेजेंटेशन आया है क्या. देन दे सेड कि कमीशन से अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, उन लोगों को पता नहीं है ये इश्यूज़ के बारे में. कमीशन को इशू पता है बोल के तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अगर देखा जाए तो अगर 3 रिप्रेजेंटेशन देने के बाद तो कमीशन को इशू का बारे में आइडिया नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता है. No, the state government doesn't know about this issue. Yes, I'm coming on that thing. The state government, especially to the CMO, CMO का ऑफिस में we have sent 3 representations, and as far as we are briefed, CMS वो अपने हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, he said he has gone through that line by line. उसके बाद में वो जो चीफ सेक्रेटरी है उनको फॉरवर्ड कर रखा है अभी. तो अगर इफ़ CM इज़ नॉट अवेयर ऑफ द इशू, इतना अगर मीडिया ब्रीफिंग करने के बाद में इफ़ CM इज़ नॉट अवेयर ऑफ द इशू, ऐसा हो नहीं सकता है. एंड फ्रॉम द APSU president himself has told us कि CM has read the representation line by line and the matter has been sent to the chief secretary to be considered. तो it is not the case that the CM is not aware of the issue. CM को वाकई में इसके बारे में इन्फॉर्म्ड है. एंड वो बात अलग है कि CM is not intervening. That is ये बहुत दुखद की बात है, but CM is informed. Rest assured. Okay, हम लोग अभी इस इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर द सेम इशू जो आप लोगों ने ब्रीफिंग में बार बार बताया है, वो सेम इशू या फिर आप लोगों का कुछ नया इशू भी है अभी इस पे? जी बिल्कुल. आज आपके साथ में यहाँ अरुणाचल मिरर के साथ में इंटरव्यू करने का जो वह है ऑब्जेक्टिव भी यही है कि बहुत सारा और भी इशू है कमीशन को लेके, लेकिन हम लोग आज तक उस चीज़ पे डेलिब्रेट किए नहीं है, क्योंकि राइट नाउ हमारे पास जो इमीडिएट कंसर्न था, जो ग्लिच हो गया था रिक्रूटमेंट रूल्स को लेके, उसको कोर्स करेक्शन करने का जहाँ मौका दिखाई दिया, तो उस चीज़ को वहाँ करने के लिए हम लोग अभी तक स्ट्रेस कर रहे थे, विच इज़ प्राइमरीली 1:3 नाउ. लेकिन आज के समय में things has gone beyond 1:3 now. There are other issues which needs to be reflected. और भी बहुत सारे इश्यूज है जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने के लिए आज यहाँ गैदर हुए हैं. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना मासेस को है इन लोगों को इशू के बारे में आइडिया होना चाहिए. तो उसी के चलते आज हम लोग यहाँ गैदर किए. तो देयर आर अदर इश्यूज, उसको डिस्कस करने के लिए आई विल टेल माय कलीग हियर टू टेक अप द मैटर फ्रॉम हियर. और आप इश्यूज क्या है बताइए विस्तार में. धन्यवाद ये एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए. हमारा जो इश्यूज़ है उसको आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए. अपार्ट फ्रॉम जो 1:3 एंड 33:45 जो हम लोग अभी तक चर्चा में रखा है, अपार्ट फ्रॉम ये इश्यूज़ यहाँ में और भी कई इश्यूज़ है which needs to be highlighted. So
इसमें कुछ इशू ऐसा है जो 80:20 रेशियो, और एंड देन यहाँ पे और एक इशू है ये नॉन APST का जो एक डेफिनेशन है, एंड देन द थर्ड इशू इज़ जो ये ग्रेड A एंड ग्रेड B जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये पोस्ट है उसमें भी कुछ इशू है। तो आज हम लोग यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम जो पहले से एग्जिस्टिंग इश्यूज़ है उसका अलावा ये इश्यूज़ को भी हम यहाँ पे लेके आए हैं। क्या हाईलाइट कर पाएंगे 80:20 रेशियो वाले? ओके, बिफोर कमिंग इनटू 80:20 रेशियो, अरुणाचल का कुछ फैक्ट्स है विच आर वेरी अलार्मिंग, तो वो चीज़ को आगे हाईलाइट करना चाहूँगा। तो एवरी अरुणाचली को ये पता होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को पता नहीं है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो एंटायर कंट्री में सबसे यूनिक है, एंड इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव स्टेट। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि इसका जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, आई मीन इसका लोकेशन है, आप उसको देख लीजिए। वहाँ पे ये 3 डिफरेंट कंट्री से सराउंडेड है, एक है चाइना, एक है भूटान और एक है म्यांमार। ये तीनों कंट्रीज़ इंटरनेशनल बाउंड्री अरुणाचल के साथ शेयर करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे जो डोमेस्टिक इश्यूज़ है, डोमेस्टिक जैसे कि असम ये नेबरिंग स्टेट हो गया, फिर नागालैंड नेबरिंग स्टेट हो गया। ये नेबरिंग स्टेट में जो ये क्या बोलते हैं बाउंड्री का कंटेंशियस इश्यूज़ है, यहाँ पे ये सालों साल से है, बट अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये सबको कुल मिला के एक सेंसिटिव स्टेट अरुणाचल को बना दिया। तो इसका कारण यहाँ पे रेफ्यूजी का भी बहुत बड़ा एक इशू है, और यहाँ पे जो इंसर्जेंसीज का इशूज़ है ये बहुत अलार्मिंग है। ये रहा हमारा जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में। अगर हम इसको सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव में अगर अरुणाचल को देखने से, अब अरुणाचल का पॉपुलेशन को देख लीजिए। अरुणाचल का पॉपुलेशन है 13,83,727 जो 2011 का सेंसस के हिसाब से। अगर हम इसको इंडिया का पॉपुलेशन से अगर कंपेयर करें, इंडिया का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, तो इसको कंपेयर करने से अरुणाचल का पॉपुलेशन इज़ जस्ट 0.001%, वो 1% भी नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता है कि हमारा अरुणाचल कितना मार्जिनलाइज्ड है, वो है। और अगर इसी अरुणाचल जो पॉपुलेशन है, इसी में से अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड देखेगा, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर आप इसको सिंपल शब्द में कहेगा तो ये है वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो ये 13.84 लाख जो पॉपुलेशन है, इसमें से 60% जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैटेगरी में आता है। और तीसरा यहाँ में जो सोशो कल्चरल इश्यूज़ का अंदर आता है वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। हमारा स्टेट ऐसा एक स्टेट है एंटायर कंट्री में जो सबसे डाइवर्स है। यहाँ में 26 मेजर ट्राइब्स है एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स है, एंड हर ट्राइब का अपना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। तो इसका कारण क्या होता है, जो हमारे कल्चरल कोहेशन है, ये कल्चरल कोहेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉर एग्जांपल, अगर ईस्टर्न अरुणाचल में कुछ एक इशू हो गया तो वेस्टर्न अरुणाचल को पता भी नहीं चलता है, और अगर वेस्टर्न में कुछ हो गया तो ईस्टर्न को भी पता नहीं चलता है, या फिर पता चलता है बट या वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता एक दूसरा से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ में कल्चरल कोहेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है, ये डाइवर्सिटी का कारण। एंड देन आप यहाँ का लिटरेसी रेट देख लीजिए। यहाँ का लिटरेसी रेट है 65.4%, जबकि इंडिया का जो एवरेज लिटरेसी रेट है 72.9। तो एंटायर जितना का स्टेट है उसको देखने से अरुणाचल का लिटरेसी रेट ये सेकेंड में आता है, नीचे से, बॉटम से। तो सबसे लास्ट में है बिहार, उसके बाद सेकेंड लास्ट में है अरुणाचल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अरुणाचल इज़ अ वेरी बैकवर्ड स्टेट अभी भी। तो अभी ये हो गया ये सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। और यहाँ में जैसे कि और एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ में हाँ इकोनॉमिक अगर हम पर्सपेक्टिव से इसको देखें, हमारा अरुणाचल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट्स वेरी अलार्मिंग। आप सुन लीजिए, इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 11.1%, और इंडिया का अगर एवरेज रेट देखने से 8.3%। तो इतना कम पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसी में ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट ये रेट बहुत हाई होने का एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ में प्राइवेट सेक्टर्स जो है, प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट नील है, ये प्राइवेट सेक्टर का प्रोस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे ना तो MNCs है जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, ना तो इंडस्ट्रीज है। तो ये सब का वजह से यहाँ पे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है बहुत हाई है। प्लस
यहाँ पे अरुणाचल को अगर हम ऐसे नॉर्मली देखने से ग्रीन स्टेट जैसा देखता है, लेकिन अरुणाचल इज़ अ नॉन एग्रीकल्चरल स्टेट। दैट मीन्स यहाँ में कुछ कुछ हॉर्टिकल्चर प्रोस्पेक्ट्स है, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट अनसस्टेनेबल है। तो यहाँ का टोपोग्राफी और जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है उसका कारण से भी। एंड देन अगर आप देखेगा तो यहाँ में जो ये जब भी अरुणाचल और असम के बीच में कुछ इशू आ जाता है एग्जाम्पल, तो अरुणाचल ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली क्रिपल्ड हो जाता है। तो ये सब पूरा फैक्टर्स को देखने के बाद आप ये कंक्लूजन में आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अरुणाचल सबसे पहले बहुत बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। सेकेंडली, यहाँ का जो डेमोग्राफिक जो सिचुएशन है बहुत फ्रेजाइल है। एंड देन यहाँ का जो ये सिचुएशन अभी बहुत वल्नरेबल है, और इतना कम पॉपुलेशन में भी इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये बहुत बड़ा इशू है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरुणाचल का अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इट्स इक्विवेलेंट टू ए टिकिंग टाइम बॉम्ब, ये कभी भी फट सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी अरुणाचल एक परफेक्ट ये ब्रीदिंग ग्राउंड बन गया है। क्या का? इंसर्जेंसीज का, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण से। इंसर्जेंसीज का जो एक बड़ा ये है पोटेंशियल थ्रेट है, वो बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। और दूसरा है यहाँ में सोशल अनरेस्ट का, इतना डाइवर्स ये होने का कारण से यहाँ में जो सोशो कल्चरल जो कोहेशन है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ में सोशल अनरेस्ट का बहुत बड़ा ये पोटेंशियल एक थ्रेट है। एंड देन यहाँ में जो डेमोग्राफिक जो सिचुएशन आने जा रहा है, आने वाला समय में ये इसका बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी त्रिपुरा का अभी का सिचुएशन में त्रिपुरा में हो रहा है। त्रिपुरा भी ऐसे रातों रात नहीं हुआ, वो भी सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप हुआ। हम भी उसी स्टेप में चल रहे हैं। तो दिस आर बिग अलार्मिंग फैक्ट्स। तो ये सब को बोलने के बाद अभी जैसे आपने पूछा कि 80:20 रेशियो क्या है। 80:20 रेशियो का अगर हम हिस्टोरिकल देखेगा तो 1990 में फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया। इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। 80:20 रेशियो अगर हम उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखने से 80% जो है APST के लिए है, एंड 20% जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी है। दैट मीन्स 1990 में जो ऑफिस मेमोरेंडम लाया गया था, वो ऑफिस मेमोरेंडम के हिसाब से 80% जो कैटेगरी था वो ग्रेड B के लिए था, APST के लिए, एंड 20% अनरिजर्व। सब्सिक्वेंटली उसको अमेंड किया गया, 1991 में अमेंड किया, फिर 2001 में अमेंड किया। 2001 का अमेंडमेंट के हिसाब से ग्रेड A पोस्ट को भी उसमें इंक्लूड कर दिया। तो अभी ऐसे ही ओके लाइक ये जो अभी 80:20 जो रेशियो था 1990 में फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हुआ, वो 31 ईयर्स डाउन द लाइन अभी का समय में दैट इज 2021 में अभी भी ये लागू है। लेकिन अभी हम इसको सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, वो उस समय का सिचुएशन से बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। उस समय में क्या होता था, वहाँ का डेमोग्राफिक सिचुएशन कुछ और था, और वहाँ में इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। अभी तो इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयड ये जो एलिजिबल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम होने का कारण से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है। एंड देन हम अगर अपना अरुणाचल को दूसरा स्टेट से अगर कंपेयर करेगा, जैसे मेनलैंड इंडिया से अगर कंपेयर करें, वी आर एटलीस्ट 30 to 35 ईयर्स वो लोग से पीछे है। अभी हमारा 13.84 लाख का जो पॉपुलेशन है, हम बाहर का कोई भी स्टेट में जाके कम्पीट ही नहीं कर सकता है, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन। और हमारे यहाँ में जैसे है कि यहाँ में जो भी पोस्ट आता है इतना लिमिटेड निकलता है, वो भी हर साल नहीं होता है, कभी 3 साल में, कभी 5 ईयर्स में, समटाइम्स आफ्टर 10 ईयर्स। और इतना कम पोस्ट में भी आप उसमें से 20% को अनरिजर्व रख देता है, ये तो इलॉजिकल वाला चीज़ हो गया। आई मीन ये सिर्फ इलॉजिकल सिर्फ नहीं, ये अलार्मिंग है। इसलिए अलार्मिंग है क्योंकि ये जो है अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ये अरुणाचल को बहुत ये डार्क एज में ले जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम अभी आज का ये सिचुएशन में, हम आज का ये में जो ब्रीफिंग है हमारा मीडिया गेट टुगेदर है, यहाँ पे हम सिर्फ 1:3 या 33-45 में हम खुद को कन्फाइन नहीं रखा है। हम यहाँ में जस्ट कैंडिडेट बन के नहीं आया है। वी हैव कम हियर एज बोनाफाइड सिटीजन, एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट। इसलिए हम यहाँ पे आया है 80:20 को क्वेश्चन करने के लिए। इसको रिव्यू करना चाहिए। अगर 80:20 कर सकता है तो आप 100% भी कर सकता है, और 100% करना चाहिए।
हमारा स्टेट है 100% ट्राइबल स्टेट है, और आर्टिकल ये 16 क्लॉज 4 का हिसाब से हमारा ट्राइबल के लिए एक रिजर्वेशन है, एंड उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और अभी हर अरुणाचली को ये चीज़ को गौर से देखना चाहिए। I would like to ask you about the, as you have already said, literature rate कम है, economic कम है, culture cohesion नहीं होता है. So how is it related to the civil service examination and this अरुणाचल प्रदेश का जो lacunas है, उसको आप कैसे link कर रहे हैं? क्योंकि I think for the unemployment, the state government has always highlighted that for the unemployment, people has to employ themselves. People वो लोग को job create करना पड़ेगा. They don't always have to depend on the government jobs. And about this literature rate, उस पे आपका commission पे कैसा link हो रहा है? Cultural cohesion पे तो do you think that non-APSC people, they are not dedicated to these to the state? First and foremost, I want to clear one thing. यहाँ पे हम APSC वर्सेस नॉन APSC वाला इशू नहीं बना रहे हैं. ये दिस हैज़ टू बी क्लियरली अंडरस्टूड. और दूसरा ये है, हम इसको जो अभी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, इसको हम APPSC से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फील्ड, जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम लोग को या फिर बाकी जो ये है एरियाज है, उसको हम नहीं बोल रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस. एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में इसलिए हमारा APSC का ये प्रेफरेंस ज़रूरी है क्योंकि फॉर एग्जांपल आप सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव में आप देख लीजिए. फॉर एग्जांपल सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव में ऐसा है, सपोज कोई नॉन APSC कल को एक एडमिनिस्ट्रेटर बन के आता है, तो उसको क्या करेगा, वो जस्ट ऐसा वहाँ में ऑफिस में बैठ के तो अपना ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा. ही हैज़ टू कम डाउन टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में आके उसका ग्राउंड रियलिटी को चेक करना पड़ेगा. वो वहाँ का जो सिचुएशन है, सपोज वहाँ में एक कम्युनल इशू आ गया, तो वो कम्युनल इशू को उसको डील करने के लिए यहाँ में ये एक APSC और नॉन APSC अगर कंपेयर करेगा तो APSC का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो अच्छा से हैंडल करेगा. और सपोज ये नॉन APSC का अभी सिचुएशन अभी जैसे आप जिक्र किया, नॉन APSC का ऐसा है, हमारा यहाँ का जितना भी एग्जामिनेशन प्रोसेस है, आई मीन स्पेशली सिविल सर्विस एग्जाम में, यहाँ में नॉन APSC क्लियर डेफिनेशन नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर एग्जांपल 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ, APPSC जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ, उसमें 2 कैंडिडेट ऐसा था जिसका सरनेम चकमा था. तो हम यहाँ पे चकमा हजों का इशू तो हर किसी को पता है, तो हम एक साइड से बोल रहे हैं कि हम चकमा हजों का इशू को सॉर्ट आउट करना चाहिए, और दूसरा साइड से आप एक विंडो खोल के रख दिया कि वो लोग भी आ सक रहा है. तो चलो उसमें हम लोग जितना जब 2 नेम पॉइंट आउट किया, तो हम लोग कैंडिडेट सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, एंड देन तब जाके स्टूडेंट यूनियन अपसू लोग उसको रेज किया, एंड देन तब जाके कमीशन वहाँ में एक्शन लेके वो दोनों कैंडिडेट को वहाँ से निकाल दिया. तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो सपोज हम और एक एग्जाम्पल देंगे, सपोज उसी में से कोई कैंडिडेट है जिसका सरनेम चकमा नहीं है, लेकिन आप उसका बैकग्राउंड कैसे चेक करेगा? सपोज हम चकमा होके भी हम अपना सरनेम को चेंज करके एफिडेविट में हम चेंज करके एग्जाम लिख सकता है. आपका पास क्या सेफगार्ड है चेक करने के लिए? आपका पास ऐसा कुछ रोबस्ट सेफगार्ड है क्या? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसलिए अभी नॉन APSC इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टेट जो है बहुत फ्रेजाइल स्टेट में है. आप इसको जो पॉलिटिकली हिसाब से देख लो या फिर सोशो कल्चरली हिसाब से देख लो, एंड देन आप इकोनॉमिकली हिसाब से देख लो, हमारा जितना है ऐसे नहीं है कि यहाँ में कोई एलिजिबल वाला कैंडिडेट नहीं है. इतना ज़्यादा APSC एलिजिबल कैंडिडेट जो अनएम्प्लॉयड है, फिर भी आप बाहर का वाला को क्यों प्रेफरेंस देना है? हम वो लोगों को खराब ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जब रिसोर्सेस ही इतना लिमिटेड है, तो व्हाई शुड वी नॉट गिव द प्रेफरेंस टू आवर ओन पीपल? आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू हियर. यू आर सेइंग कि जो 80:20 रेशियो है उसको आप लोग 100% करना है. यस, यू शुड लाइक द कमीशन शुड रिमूव द 20 रेशियो, सीधा 100% फॉर द APSC. यस. ये हमारा बोलना ये है कि देखिए, अभी जितना भी हम अरुणाचल का सिचुएशन को हाईलाइट किया है, इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि वी आर इन अ वेरी वल्नरेबल स्टेट. तो ऐसे सिचुएशन में हमको 100% करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्स, इसलिए है. एंड दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो अभी जितना हम बोल रहे हैं कि 80-20 वाला बात है ना, तो 80-20 वाला जो है, इसको अगर हम 100% कर लेता है, फॉर एग्जांपल
वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड भी नहीं होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है, बिकॉज आर्टिकल ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का हिसाब से हमारे लिए जो ट्राइबल स्टेट है, वी आर 100% शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट, इसको हम रिजर्वेशन रख सकता है। तो एक्चुअली हमको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितना बाहर का जो मेनलैंड ये में है, फोरम में है, मेनलैंड प्लेटफॉर्म में है, वहाँ पे हमको रिजर्वेशन मिलता है SST स्टूडेंट्स, SST ये कैटेगरी का हिसाब से। लेकिन अपना ही ST स्टेट में हम यहाँ पे अनरिजर्व एक कैटेगरी निकल दिया, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अगर यहाँ में कैपेबल वाला जो ये कोई एलिजिबल वाला नहीं था बोलने से अलग बात था, बट व्हाट वी आर आस्किंग इज, जो आप पहले का सिचुएशन को अभी कंपेयर मत कीजिए, पहले चलो कंपेयर भी जरूरी है, बट अभी का सिचुएशन है दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, पहले से बहुत डिफरेंट हो गया है, इसलिए इसको 100% करना इसलिए ज़रूरी है। As we are talking about the issues about the administrative, say about the Civil Service Commissions Board, is there any hope there will be further changes, because there has been the DSP physical test? Would you like to say something on that? Yeah, regarding the response part, as such, we've not received much enthusiastic response from the government, but we do hope that it's still not too late to bring about changes. And the issue that I wish to bring about is also related to the DSP recruitment, especially regarding women, APST women. No? So if we are to see, since the inception, there has been only one direct recruitment through the APST recruitment test, that is of one Miss Techi Hanyir, which was 9 years ago in 2012. And since then there has not been a single recruitment. And if you ask why, the issue here pertains to the qualifying criterions, which is in terms of the physical test. And this matter has not been addressed so far. For this, we'll also have to look at the UPSC requirements. In UPSC, there is the requirement of PST, which is a physical standard test. And physical standard test has, for women, general criteria is of 150 centimeter, and for ST it is 145 centimeter. Whereas on the other hand, APSC has two criterions, which is a physical standard test as well as physical efficiency test. In the physical standard test, if you are to compare it with the ST requirement of UPSC, which is a 145 centimeter, APSC has no such distinction, but a blanket requirement of 158 centimeter, for DSP, which is even more than the requirement of SI, sub-inspector. Jabki sub-inspector is a field level officer work, and DSP is more or less restricted to administration. And SI has a requirement of 157 centimeter, which is more relaxed than that of DSP. And besides, there's also a special category of physical efficiency test, PET, in which for the DSP there's a requirement of the female having to complete 100 meter in 16 seconds, which is very difficult, and no one has been able to qualify this besides rigorous training. And whereas if we are to see for the SI, the category is just of 3 seconds difference, 19 seconds to complete 100 meters, and in this फिर भी 600-700 candidates qualify हो जाते हैं. So this criterion is very unique to Arunachal Pradesh, and it's not present in any other state exams, not even in UPSC. So my question here is, what is the relevance of such stringent requirements, which is not only unique to this state, but it's also discriminatory and very anti-women, to say the least. And as a woman, I say that women in Arunachal has always been subjected to so much of unnecessary, suppression, historically, if we are to see. So isn't it the responsibility of the state to rather, construct a very conducive environment to catapult the cause of its women folk? So in this light, I feel that the PET should be done away with, and it should be done away with altogether. And the PST, which is a physical standard test, the requirement can be relaxed a little bit with due reflection and analysis, not only by the government, but it should be a collective effort on part of the government, the Women Commission, the student bodies, and all CBOs. So time and again, the APPSC aspirants, the AGRIF aspirants have come to the media to
express the issues of the commission boards. So my question would be, why after the examination and right now we are with the aspirants, the AGRIF aspirants, so आप लोगों ने पहले भी एग्ज़ाम्स दिया था या और इज़ इट द फर्स्ट टाइम, एंड इफ दिस इज़ योर सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, व्हाई डिडंट यू रेज दिस इश्यूज बिफोर, व्हाई नाउ? Okay, we have addressed this queries earlier also a couple of times. इसमें suppose देखो कमीशन जो है दैट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक ऑटोनमस बॉडी है, उसके पास में मैकेनिज्म है और रिसर्च विंग्स होता है. तो अगर कमीशन का तरफ से अगर एवरीथिंग इज हमेशा सही है, एवरीथिंग इज इन इट्स ऑन प्लेस, तो देयर उसमें हम एस्पायरेंट्स को आके क्वेश्चन करने का वैसे भी कोई जगह नहीं होता है. बट यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ आवर कमीशन. अब देखिए 2015 को जो है पेपर लीक का इशू, 2017 को है बहुत सारा रॉन्ग क्वेश्चंस, स्पेशली द कॉमर्स वाला इशू को ले लो, 49 क्वेश्चंस आप उसमें गलत दे देता है. ये कमी किसका है? एस्पायरेंट्स का है, कमीशन का है. अभी आप देखिए 2020 में है आर्बिट्रेरी रेशियोज. एटलीस्ट 2020 में तो जब यूपीएससी का जो पैटर्न लेके आया था, देयर वाज अ ह्यूज एक्सपेक्टेशंस कि थिंग्स विल बी राइट दिस टाइम. लेकिन सम हाउ द कमीशन हैज़ मैनेज स्टिल to bring in these arbitrary ratios because they are not well aware of their own recruitment rules. तो जब कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले बात तो हमारा बीइंग एन एस्पायरेंट ये बनता नहीं कि हम उसको जाके क्वेश्चन करें. कमीशन शुड हैव डन देयर ओन research work on the ground. As we have already mentioned that Yes, the yes. state government can Yes, interfere yes. in this issue. Right. So we hope your issues will be highlighted to the state government. Is there any appeal for the state government, I mean to the state government? थोड़ा सा अपील है. Yeah. लाइक सीएम साहब श्री पेमा खांडू जी से अपील है. उसको जब ये जूनियर इंजीनियर्स जो उन लोगों का एग्ज़ाम डिपार्टमेंटली कॉन्डक्ट करता था, तो ऐसा बहुत लाइक अप्रेंशंस था कि करप्शन होता है, क्या होता है, फिक्सिंग होता है, ये सब. तो खांडू साहब ने रिफॉर्म लाया, लाइक उसको लाइक APCS का थ्रू ही कॉन्डक्ट करवाया, और आई थिंक RWD का एग्ज़ाम को भी लाइक कैंसिल करा के ये APCS से कराया. तो खांडू साहब से रिक्वेस्ट है कि इस बार जब नया पैटर्न में थोड़ा लेक्यूने निकला है तो काइंडली वो इंटरवीन कीजिए. फिर कमीशन से भी एक निवेदन है कि लाइक अपना गलती मान लेने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है. अगर एरर क्रॉप अप हुआ है, जैसे कि लास्ट टाइम क्रॉप अप हुआ था, तो प्रीवियस चेयरमैन ने रिकॉन्डक्ट करवाया. इस तरह जब ये आपको हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं, आप जस्ट 192 मोर कैंडिडेट्स को क्राइटेरिया को रिलैक्स करके 8 करो, आपको हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं, तो आप वो सोल्यूशन को अपना सकते हैं. आप अपना डिस्क्रिशनरी पावर को काइंडली यूज़ कीजिए. आप ये समझिए कि ये आपका बेटा है, आपका बाय लोग है, ये लोग अपील कर रहे हैं. इट्स नॉट ओनली द एग्रीड कैंडिडेट्स, ये फ्यूचर के स्टूडेंट्स कम्युनिटी लोग आपको अपील कर रहे हैं कि अभी आप रेक्टिफाई कीजिए. और रही बात क्वालिफाइंग का, शायद हम चारों ही क्वालिफाई ना हुआ हो अगर 192 का लिस्ट निकले, बट वी आर अपीलिंग फॉर एवरीबॉडी, ताकि ऐसा गलती, ऐसे इनजस्टिस को फेस ना करे. फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये रिक्वेस्ट है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका नेफ्यू तकलीफ में है, हम लोग है, नीस सिस्टर्स, तो आप लोग क्यों अनसुना कर रहे हैं हमको? अभी भी समय है, इंटरवीन कीजिए. एक बार मुद्दा खत्म हो जाएगा, हमारा एनर्जी खत्म हो जाएगा, तब आप आके हमको सहानुभूति देने से उसमें कोई वैल्यू नहीं है. फिर करंटली जो ये CBO और इंटेलेक्चुअल्स है, क्या हम आपका कंसर्न नहीं है क्या? क्या ये पब्लिक इशू नहीं है क्या? आप लोग काइंडली अपना आवाज़ उठाइए. मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ए सिविल राइट्स मूवमेंट एक्टिविस्ट ने एक बार कहा, द अल्टीमेट ट्रेजेडी इज नॉट द ऑपरेशन एंड क्रुएल्टी बाय द बैड पीपल बट द साइलेंस ओवर बाय गुड पीपल. आप समझिए इस चीज़ को. और हमारा फेलो एस्पायरेंट्स जो अभी फिलहाल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो क्वालिफाई हुआ है, जो क्वालिफाई नहीं हुआ, ये इशू है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं. हम आप लोग का अगेंस्ट नहीं है. और आप लोग जब क्वालिफाई किया, यू हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स, आप 45% क्लियर किया है. मोस्ट ऑफ द UPSC एस्पायरेंट्स भी उतना नहीं लाता है, आइस बन जाता है कभी कभी. आप लोग काइंडली मत डरिए. आप फेयर एग्ज़ाम होगा, आपको फेयरली मिलेगा, तो
आपका जो मिला है उसका भी अपना वर्थ होगा। और काइंडली जो एस्पायरेंस जो हमारे साथ नहीं दे रहा है, इवन तो हम हमारी तरह इनजस्टिस फेस करके, अब काइंडली विक्टिम बन के साइलेंट मत बैठिए, आप भी अपना आवाज़ उठाइए, हमारे साथ दीजिए, हमारे फोरम में अपना वॉइस आउट कीजिए। और जनरल पब्लिक से ये है कि हल्ला बोल, आवाज़ निकालो, बी देयर फॉर योर पीपल। आपका भाई है, आपका बहन है, आपका भतीजा है, आपका बेटा है, काइंडली आवाज़ उठाइए, अभी समय है। ये इशू ख़त्म होने के बाद उठा के तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो काइंडली आप लोग से लास्ट टाइम रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग इंटरवीन कीजिए, एनीबॉडी, एनी इंटेलेक्चुअल आके हमारा मदद करिए। So as the group aspirants have come up here for the talk show, they want the support of organizations, CBOs, student organizations from the government. Are we expecting any democratic movement from you guys? ऐसा है, अभी जितना भी हमारा जो इशू था, वी हैव रियली डेल्ट इट विद utmost डिसेंसी। हम जितना यहाँ पे एक एज कैंडिडेट, एज यहाँ का जो रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हम लोग एग्ज़ाम को कभी भी डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश नहीं किया। एंड देन हम लोग नहीं चाहता कि ये डिस्टर्ब हो, क्योंकि जो क्वालिफाई हुआ है वो डिज़र्विंग है, और जो क्वालिफाई अभी नहीं हुआ है बट अभी भी वो लोग डिज़र्विंग वाला सेक्शन में है, बट फिर भी अनफेयरली वो लोग को डिनाई किया गया है, तो दे ऑल्सो डिज़र्व टू बी इन द लिस्ट। तो काइंडली उसमें एक करेक्टिव मेजर्स लेके आइए। और जहाँ तक डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बात है, देखिए हम लोग का जो इशू अभी तक हम लोग जितना हाईलाइट किया है, सबको पता है, एवरीबडी इज़ अवेयर। यहाँ में जिसका थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो सबको मालूम है। अगर हम इतना ज़्यादा मीडिया ब्रीफिंग किया है तो देयर इज़ अ रीज़न। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कमीशन हमको डिफेम कर सकता है, गवर्नमेंट हमको डिफेम कर सकता है, बट वी आर राइट। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे जितना हमारा अरुणाचल का जो सिटीज़न है, अगर आप लोग हमारा जो जेन्युइन इशू है आप लोग वॉइस आउट कर देगा तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। एंड हम लोग को अभी जितना भी हम लोग बोल रहे हैं, वी आर नॉट एनी आउटसाइडर, हम लोग यहीं का है और यहाँ का जो एक बोनाफाइड सिटीज़न है, इसलिए वी फील दैट ये सब करके, ये अननेसेसरी रकस क्रिएट करके या फिर वो करके एग्ज़ाम को हम लोग स्टॉल कभी किया भी नहीं और फ्यूचर में भी नहीं करेगा। बट काइंडली ये आपका अपना कॉन्शियंस को भी पूछ के देखिए। ये अभी आज हम ये स्थिति में, ये सिचुएशन में है, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं होता है। अगर आज रेक्टिफाई नहीं किया तो कल को आप भी वो सिचुएशन में हो सकता है, या फिर आपका कोई बेटा या बेटी या फिर भाई या बहन कोई हो सकता है। और अभी स्पेशली जिसका ये बार ये लास्ट अटेम्प्ट था, आप सोच के देखिए, वो लोग इतना साल से प्रिपेयर करके आया एंड दे आर वेरी डिजर्विंग। कोई तो यूपीएससी मेंस को 2-3 बार अटेम्प्ट भी दे चुका है, दे आर वेरी डिजर्विंग। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो एक एरर होने का कारण से उसका जो करियर है उसको जो पटाइज करके रखा है, इसमें अभी भी एक करेक्टिव मेजर्स लेके आ सकता है। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट ज़रूरत यहाँ में पड़ना चाहिए। बट यहाँ का वी हैव फुल फेथ इन द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारा जो कमीशन है, हमारा जो गवर्नमेंट है, चलो भले यू आर क्वाइट टिल नाउ, बट इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट, अभी भी इंटरवेन कर सकता है। इन स्पेशली आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, आप काइंडली इसमें इंटरवेन कीजिए, क्योंकि आज का आपका ये एक इंटरवेंशन का वजह से यू आर गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टेट। और अभी हम एज इन अ नट सेल, अभी हम लोग जितना भी इशू लेके आया है, चाहे वो 1:3 हो, चाहे वो 33% 45% हो, चाहे वो 80:20 रेशियो हो, चाहे वो ये नॉन APST का जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये जो है इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू अभी के लिए, ये फ्यूचर में 30 years डाउन द लाइन, 40 years डाउन द लाइन, दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टेट।
इसलिए आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। तो हमारा संदेश तो ये है। थैंक यू। So as we have talked about the grievances of the aspirants, of the aggrieved candidate aspirants, we hope that this will be highlighted to the state government. And thank you for joining with Arunachal Mirror. थैंक यू।